Hi friends, welcome to my channel. I'm sitting at Nana Nani Park. It is Friday 28th March. Me and my God knows how I have managed to uh, come down here. I'm at Nana Nani Park. First thing I did was visit the church. I was there for like less than 5 minutes. Then I came down to Nana Nani Park and I'll take the shortcut, the Chaul Wala Rasta, and I will go to small garden. What happened was yesterday I did feet massage and my hand massage with Ayurvedic oil, and I went down to sleep. And you won't believe I got such a deep sleep, such a deep sleep, such a deep sleep. These days I'm like a sleeping beauty. I'm fast asleep. So, and Daryl sir got worried about me. He's saying, "You're sounding very low." I said, "Yeah." He's like, "Yeah, are you eating something? Because your voice is sounding very low." I said, "I cannot consume anything. I cannot eat anything." He said, "Try to eat something, and you're looking very weak." Like he didn't say, he said, "You're sounding very weak. You're looking also very weak. You need to put on some weight." So then he said, "Morning mein," I said, "My routine is very different. I don't eat anything in the morning. I cannot eat anything otherwise also." So anyhow, what I did was I I think I got up in the middle of the night and I went and I got the sleep back again. In the sense, I got up at 6:52. I said, "What do I do, Shanti?" I said, "There's no point in lolling around." I got up. First thing first I did was one small that steel ka glass 200 ml water. I sat down and I had that like big slurp of it, because first water you should sit down and drink peacefully, sip. If I have all the time in the world, I do that. I take the 400 ml and I sit and sip it. Here what happened was that I didn't have the time. I drank the water and I took a quick shower. I always take a shower in the morning, and I took a shower in the morning. That feet massage in the night gave me a very good sleep. Literally, Ayurvedic oil I used. My feet, calf muscles, and my hands. Excellent sleep I got. Excellent. You can see the results. And then, then I took a shower and it was around 7. The entire procedure took me 7:11. I quickly dressed up because this was ready only. ये hanger पे ही होता था, and I wanted to wear this particular dress. And because yesterday I went to the dhaba and I had बैंगन का भरता and करेले की सब्जी, which he had made it for his home पाजी. तो उन्होंने मुझे कहा, he was about to take it home. तो उसके पहले I reached there sometime. saying लड़के ने फटाफट थोड़ा चाय था, उसने मुझे दे दिया. मैंने बोला चाय नहीं है, बहुत मीठी रबड़ी है. Then he served me saying, करेला खाओगे आप? मैं घर के लिए लेके जा रहा हूँ, अच्छा बनाया है उस्ताद ने. तो I said, gave me करेला and I sat down. I ate it very slowly. वो रोटियाँ ज़्यादा हो रही थी तो मुझे छोटे लड़के ने भाग के आपको राइस. Then he bought me some rice because I somehow ate that rice. Could not eat anything. मैंने बोला ये भी मुझसे खाया नहीं जाता, लेकिन हाँ, फिर भी मैंने बोला घर का खाना जैसे तो एटलीस्ट रोटियां तो खाऊं मैं. आई थिंक आई फिनिश्ड माय आवला. या आई गेस किसी चीज़ के लिए मेरे पास वक्त नहीं था. तो one of the boys is saying, "मैडम आपने हेयर कट किया, आप बहुत अच्छे लग रहे हो. ये हेयर कट किया आपने, अच्छे लग रहे हो." My face was looking very peaceful and calm because I had slept in the afternoon. I said, there is no movement because I was feeling exhausted. I was just telling him also, I'm really exhausted when I see the clutter in my house. I said, the reason being there is so much attached to it ना, that मुझे हाथ डालने को भी मन नहीं करता. I don't want to be associated to it. It's like ये कहीं disappear हो जाए ताकि इसका dispose करने का responsibility भी नहीं चाहिए मुझे. Seriously, I can't tell you all how it is living in a home with so many bad memories. I said, ये मेरे डैडी की मेहनत की कमाई का घर है. चाहे वो औरत ने मुझे कितना भी दुख दिया है. हाँ,
No, I push myself each day sometimes, when I think of all the bad days I had over there. Good days, handful of them या ना के बराबर ही थे. और उसने जो लेगेसी खड़ी करी है मुझे, मेरे लिए इतना डिफिकल्ट है टू ओवरकम ऑल दोस थिंग्स. इट्स ओनली गॉड्स ग्रेस. जब ये लोग ना भाव खाते रहते हैं, दिस बिचेस बिलो माई बिल्डिंग, वो तो का मैं तो वो की वर्किंग, वो बिल्डिंग के नीचे वॉक मार रहे हैं. मैंने बोला एक तो भाग भाग के सुबह सुबह दौड़ के काम पे जा रही है, उसको इतनी सी एनर्जी नहीं है, सूखती जा रही है, मरती जा रही है. और जो हाउस वाइफ है वो तो और भी ढसती जा रही है. और इन लोग गार्डन के ऊपर रिगरस वॉक्स मार रहे हैं. मैंने बोला ये भैंचोद औरतें चूतिया हो गई है क्या. एंड आई जस्ट लाइक सेड हेलो एंड जस्ट वॉकड ऑफ. Also very dry because they're very jealous because they have they have such complicated lives. Why are you stressing out? Is it necessary? Both are losing weight like anything and looking uglier day by day. I saw that kid came running to me. She's so happy. She's like, Auntie, I got my new pajamas. She's so sweet. फिर अगर मेरी कोई बेटी होती ना, इस तरह की लड़कियां चाहिए मुझे. आई टुक सो मच ऑफ अ टाइम टू ईट. धीरे धीरे मैंने खाना खाया, तब जाके मेरे अंदर कोई हिम्मत आएगी मैं सुबह उठ के यहाँ पे आऊँ. बहुत भाव खा रही है. मैंने बोला ये क्या बेअक्सी औरतों का ना अक्ल नाम की चीज़ नहीं था. हेयर हर्ड मेंटालिटी. वो कर रहे हो उसको करने दे. मे बी शी हैज़ अ सिटिंग बट स्टिल शी इज़ लाइक ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस. नाटक नखरा करेंगी. मैंने बोला तुझे तो घर का काम रहता है, इतना झाड़ू कटका करती रहती है. इनफैक्ट शी इज टेलिंग मी मैं क्या सर्वेंट क्यों रखूँ. मैंने बोला सर्वेंट, आई वाज फेल लाइक टेलिंग दैट हाउस वाइफ, तुझे सर्वेंट की क्या ज़रूरत. एक तो रहने के लिए, खड़े रहने के लिए तेरे घर में जगह नहीं है, जॉइंट फैमिली है, तो तू करेगी. तो तुझे सिर्फ चूल्हा चौका तो संभालना है, वो भी तेरे सेक्शन के लिए, तेरे फैमिली के लिए. तो तुझे सर्वेंट क्यों चाहिए. उतना तो तू कर ही सकती है, एक झाड़ू पोछा और एक खाना बनाना. जैसे नहीं वो फिर उसको 3,000 रुपये देने पड़ते थे. मैंने बोला मतलब द कॉन्सेप्ट इज नॉट गिविंग द मनी देन डूइंग द वर्क. आई सेड इट इज़ योर होम. इट शुड नॉट बी कि अगर आजकल में अगर मेरे हाथ पैर नहीं चलते, इफ़ आई नीड अ टेम्परेरी हेल्प आई विल टेक, बट अदरवाइज डिपेंडिंग आई माइट नॉट वांट परमानेंट सोल्यूशन. बिकॉज if I can do things on my own, I will definitely won't keep a servant. 500 स्क्वायर फीट के घर में या 600 फीट के घर में तुम्हें सर्वेंट की क्या ज़रूरत है, समझ में नहीं आता. एक झाड़ू और कटका ही लगाना है ना. एक आधे घंटे का काम है वो. ये तो बाई लोग 20 मिनट में कर देते हैं कैसे तैसे. तो भी आधे घंटे से कम टाइम लगता है. And some of them are always spending time cleaning. How much can you clean? एक बार साफ कर लिया, झाड़ू पोछा कर लिया, more than enough. मैं तो खाना भी नहीं बनाती. I can't even say I am like मैं खपती हूँ किचन में. हर्ड मेंटालिटी. ये ले रही है, उसके पीछे ये दौड़ रही है मेंटल. मैंने बोला तू ऐसे फ्लाइंग मंकी है, इसलिए there is no respect. मुझे मैं एक हाउस वाइफ हूँ. मैं घर का इतना पूरा काम करके, दो बेटियों का काम करके, इसका तो दूसरी वाली कर दिया है. तो मैं क्या ऐसे दौड़ लगाऊँ. मैं उसको बोलती तू ले भाई वॉक. मैं बैठ जाती हूँ. मैं इतनी थक जाती हूँ. दो बेटी, इतना घर का काम, इतना. दूसरी वाली को तो इतना कुछ नहीं रहता है. स्टॉप बीइंग हर्ड मेंटालिटी. स्टॉप कंपीटिंग. इनकी सड़ी हुई शक्लें देख के ना मैंने ऐसे बोला. पहले जाके खड़े रह के बातें करती थी ना, सलाम नमस्ते. अब तो मैं कम्प्लीटली बंद, मतलब बंद. I'll go and get a sugarcane पीऊंगी मैं. I'm not really hungry because मैंने बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको,
रोटियां और राइस खा ली थी ना, सी माई फेस लुकिंग सो फ्रेश। अभी मैं कैरी नहीं करती हूँ, पहले मैं लल्लू चप्पू करती रहती। इट वॉज आउट ऑफ कर्टिसी एंड पोलाइटनेस एंड ऑल दैट। मैंने बोला भेंडी, इसकी दो पैसे की भी कीमत नहीं है। व्हाट डू पीपल थिंक ऑफ देम सेल्व्स? एंड एट द मोमेंट मेरी हायरार्की ऑन अ हायर लेवल। मुझे नहीं लल्लू चप्पू करनी है किसी। मेरी हायरार्की नहीं भी होती ना तो 2 पैसे के केयर नहीं करती। मैंने बोला यहाँ पे भैंचोद मेरे कोई वेल विशर है नहीं, तो क्यों दौड़ दौड़ के सलाम नमस्ते। एंड आई लुक वेरी गॉर्जियस एंड आई लुक वेरी लाइक गॉर्जियस एज इन मेरी स्टाइल स्टेटमेंट हमेशा अलग रहती है। आई लुक वेरी डिफरेंट एंड स्टाइलिश ऑल द टाइम। तो जलते पुड़ते इसकी वजह से डैरल सर मुझे बोले तुझे नज़र लग गई है। मे बी बिकॉज you walk so fast or whatever it is. आई सेड अभी मेरे अंदर कोई शक्ति ही नहीं है ना, खाने पीने का मज़ा आता है। आई इवन टोल्ड पाजी मुझे बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आई हूँ ना, जिद करके आई हूँ कि नहीं कुछ तो खा लूँ, क्योंकि रोटियाँ तो बनाते मैं आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग फूड। आई एम अ फूडी। आई लव टू ईट फूड। मैं घर के बोल ऑफ सैलेड बना के, खाकरा बना के, कुछ ना कुछ एक थाली बना के खा लेती थी। बट ना माई रूटीन, माई डैड इज सेइंग यू नीड टू चेंज योर रूटीन शांति। मैंने बोला अभी यू नीड टू ईट समथिंग फ्रॉम द होम, मेक कॉफ़ी एंड ऑल। मैंने बोला हाँ सोचती हूँ अभी मैं क्या कैसे मैं उसको रेगुलेट करूँ, क्योंकि आई बॉट अ बिग दिस ऑफ कॉफ़ी राइट, ब्रू गोल्ड का। सो आई हैव टू ट्रांसफर इट टू अ स्मॉलर कंटेनर। और वो 50 ग्राम का जो कंटेनर है मेरा फर्स्ट वाला, उसमें मुझे ट्रांसफ़र करके ये बॉटल को कोने में रख देने का है। Can't open that entire bottle and use it. Maybe I should start having black coffee in the morning after my lemon tea and all that. Breakfast करते वक्त एक black coffee पी के और एक सैंडविच या कुछ खा के निकल जाना है। अब वो ही मैं करूँगी। Maybe I'll cut down Pond Park and I'll keep it once in a while. Pond Park जब मेरे पास बहुत सारी फुर्सत है और मुझे वो शोर शराबा टॉलरेट कर सकती हूँ। मुझे यहाँ पर भी ना इन लोग जब ये माइक पे बोलते हैं वो भी मेरे सर में घुस जाता है। अब प्राइड एंड एरिगेंस आता है लेडीज़ में। उनको क्या लगता है कि उनके हस्बैंड्स और वो थोड़े बेटर ऑफ करते तो ऐसे घमंड दिखाते, पता नहीं क्या अपने आप को समझते। रानी पद्मावती, आई डोंट नो व्हाट इट इज, एन एटीट्यूड दे कीप थ्रोइंग। So done and dusted. यहाँ पे सिर्फ कुल मिला के 2 या 3 लोग हैं पार्क के अंदर। आई हैव टू गो होम। इस फ़ोन को मैं चार्जर पे लगा देती हूँ एंड देन आई गो एंड हैव सम शुगर केन जूस। Okay guys, take care of yourselves. Bye.